ઇતિહાદુલ મુસ્લિમીન એ હિન્દ સંસ્થા દ્વારા ભારતની આઝાદીમાં મુસ્લિમોના યોગદાન વિશે માહિતી અને સ્વૈચ્છિક સામાજિક સંસ્થાઓ જે આરોગ્ય એજ્યુકેશન ઉપર કામ કરી રહી છે તેમનો અભિવાદન સમારોહ યોજાયો। અંજારના વીડી બગીચા પાસે આગરિયા ફાર્મ ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ભારતની આઝાદીમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન તથા વર્તમાન સમયમાં ફરજો વિશે માહિતી અપાઈ હતી અને કચ્છભરમાં આરોગ્ય, શૈક્ષણિક અને સામાજિક સેવા કરતી 48 જેટલી સ્વૈચ્છિક અને સામાજિક સંસ્થાઓનો અભિવાદન સમારોહ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે સૈયદ સલીમ શાહ બાપુ વિજાણવાળાએ પોતાના વક્તવ્યમાં અંગ્રેજોની ગુલામીમાં 1857 થી 1947 સુધી ભારતની પ્રજા ઉપર જે અત્યાચારો થયા તેના વિશે માહિતી આપી હિન્દુ મુસ્લિમોએ સાથે મળી તેનો મુકાબલો કર્યો હતો અને કેટલાય મુસ્લિમ મૌલાનાઓને અંગ્રેજોએ ફાંસીએ ચડાવી દીધા હતા તેની વિસ્તૃત માહિતી આપી ભારતના સંવિધાન ઉપર અમલ કરવું એ જ સાચી દેશભક્તિ છે તેવું જણાવ્યું હતું અને નફરતોની બજારમાં મહોબ્બત જાળવી રાખી સામાજિક અને કોમી એકતા જાળવવા માજી ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખે જણાવ્યું હતું। નફરતના માહોલ વચ્ચે મહોબ્બતનો માહોલ પેદા કરવો છે તેવું ધારાસભ્ય ઇમરા ખેડાવાલાએ જણાવ્યું હતું। સદરે જલસા ઓબેદુલ્લાહ ખાન આઝમીએ જણાવ્યું કે જશ્ને આઝાદીનો મતલબ છે એક બનો નેક બનો। સૌથી મોટી નેમત આઝાદી છે અને સૌથી મોટી લાનત ગુલામી છે। અંગ્રેજો હંમેશા આપસમાં લડાવી રાજ કરતા રહ્યા, તેનો પરિવર્તન ન થાય તે માટે નફરત સામે મહોબ્બત બતાવી દેશની આઝાદીને ટકાવી રાખવા વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય આયોજક મુસ્લિમ અગ્રણી હાજી જુમ્માભાઈ રાયમા, ઇતિહાદુલ મુસ્લિમીન એ હિન્દ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ હાજી મોહમ્મદભાઈ આગરિયા, ફરજંદે મુફ્તીએ કચ્છ સૈયદ કાસમ શાહ બાવા, હાજી આદમભાઈ ચાકી, હાજી સલીમભાઈ જત, હાજી દાઉદભાઈ બોલિયા, સૈયદ કાસમ શાહ બાવા સિનુગ્રાવાળા, અશરફ શાહ સૈયદ, હાજી યુસુફભાઈ સંગાર, હાજી યુસુફભાઈ જત, ફારૂક, હાજી ઇબ્રાહીમ હાલેપોત્રા, રફીકભાઈ તુર્ક, અસલમભાઈ તુર્ક, અશરફભાઈ તુર્ક, સાજીદભાઈ માણેક, ગુલામભાઈ સમેજા, હાજી રજાક લોઢિયા, હાજી ફરહાન લોઢિયા, અનવર ઝરિયા તથા 48 સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના પદ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન અને એનાઉન્સમેન્ટ કચ્છ મુસ્લિમ ઉલમાએ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મૌલાના હાજી સિદ્દીકભાઈ રાયમાએ કર્યું હતું। શિરાજ મલેક અને ઇમ્તિયાઝ મોયડા સાથે કાસમ ખલીફા, ન્યૂઝ 11 ગુજરાત, મુન્દ્રા, કચ્છ। नमस्कार दर्शक मित्रों, हाल अंजार खाते मुस्लिम समाज द्वारा खास कर इतिहादुल मुस्लिम ट्रस्ट ने एक संस्था है तेना द्वारा जश्न आज़ादी कार्यक्रम राखवामां जेनी अंदर मुंद्रा આપણે ગુજરાતના एक मुस्लिम धारासभ्य इमरानभाई खेड़ावाला, पूर्व धारासभ्य અને બહુ મોટા મોટા મહેમાનો પણ આવ્યા હતા, જેમને બહુ સારું ઉદ્બોધન પણ આપ્યું કે આઝાદીમાં મુસ્લિમ સમાજનું કેટલું પ્રભુત્વ હતું, મુસ્લિમ સમાજે કેટલું ખૂન રેડ્યું છે અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓને થોડાક આ મંચ ઉપર આજે યાદ કરવા ત્યારે રફીકભાઈ આ કાર્યક્રમમાં કેવો પ્રતિસાદ મળ્યો અને આ કાર્યક્રમ પછી કેવી અસર થશે કચ્છમાં? ખાસ કરીને આજે ઇતિહાદુલ મુસ્લિમીન હિન્દ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભારતીય દેશની આઝાદીના ઉજવણી સંદર્ભે આજનો કાર્યક્રમનું અમે આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ખતીબે હિન્દ અને સલીમ બાપુએ આ દેશની આઝાદી માટે જે મુસ્લિમોએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી અને સાથે સાથે વર્તમાન સમયમાં મુસ્લિમોએ કઈ રીતે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરવું એના વિશે પણ ખૂબ વિસ્તૃત માહિતી આપી અને આજે અમે 48 જેટલી મુસ્લિમ કચ્છની તંજીમો છે જે શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે કામ કરી રહી છે એનું પણ અમે બહુમાન કર્યું અને આજના કાર્યક્રમથી સમાજની અંદર જે કાર્યો કરવા જોઈએ કે કઈ રીતે મુસલમાનોએ આગળનો જે જીવન છે કઈ રીતે વીતવું જોઈએ અને કેવા કાર્યો કરવા જોઈએ એનો ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળશે અને જીવનમાં લોકોના જીવનમાં એમના વિચારોમાં બદલાવ આવશે અને એનું અનુકરણ થશે એવી અમને ચોક્કસ આશા છે। અને આજના કાર્યક્રમમાં જે પણ સંસ્થાઓનું બહુમાન કર્યું છે તો એમને પણ આગળ કામ કરવા માટે પ્રેરણા મળશે એવી અમને આશા છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ મંચ ઉપર કચ્છના તમામ મુસ્લિમ સમાજો આજે એક જ મંચ ઉપર બતાવ્યા અને કહે છે કે મત પૂછો જમાને સે હમારી ક્યાં કહાની હે, હમારી તો પહેચાન હે હિન્દુસ્તાની હે। એ નારો આ મંચ ઉપર લાગ્યો અને આજે એક અલગ રંગ દેખાયો અને ખૂબ સારું વક્તવ્ય આપ્યું। મારી સાથે કાસમભાઈ ખલીફા, હું સિરાજ મલિક। आज जो कच्छ में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जश्न आज़ादी का जो रखा गया, उस कार्यक्रम के अंदर हमने देखा
कि कितने हज़ार उलमा इकराम और मुस्लिम समाज की जो कुर्बानी है कि जिसको हम सोच रहे कि संकुचित विचारधारा के तहत छुपाया जा रहा है, लेकिन आज जिस ढंग से जिस तरीके से मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने और जो दूसरे वक्ता हैं उन्होंने जो बात को रखा, तो इससे पता चलता है कि इस हिंदुस्तान की जो आज़ादी है उस कुर्बानी के अंदर मुस्लिम समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कंधे से कंधा मिला के हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज ने अपनी शहादतें देते हुए, अपनी कुर्बानी देते हुए इस देश को आज़ाद कराया है। और आज मैं मानता हूँ कि देश के अंदर भी इस जो आज़ादी जो इस मिली है वो आज़ादी इस देश की बरकरार रहे, देश का संविधान बरकरार रहे, देश का एकता और भाईचारा बरकरार रहे। आज उसी बात पर जो देखो आप, तो फोकस पूरा का पूरा इस पर किया गया है। और हमें उम्मीद है कि जितनी भी फासिस्ट ताकतें हैं वो चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे बड़ों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह उनका खून राएगा नहीं जाएगा। और ये जो बात है आज नहीं तो कल तभी लोगों की समझ में आएगी और नफ़रत की हार होगी और मोहब्बत की जीत होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आज के प्रोग्राम में आया हूँ इत्तेहादी मुस्लिमीन की जानिब से रखे गए आज के जश्न आज़ादी के मौके पे आज हमें आने का मौका मिला। मैं, मेरे साथी एक्स MLA गयासुद्दीन शेख साहब और ख़ास करके आज जो यहाँ मौजूद थे ऐसे आज़मी साहब के, जिनकी राज्यसभा में, लोकसभा के अंदर काफ़ी एक ज़माने में उनकी बात रखते थे और वो बात सरकार के अंदर भी वो बात को उठाया जाता था। ऐसे वक्त के अंदर आज हालात के देश के जिस तरह के हालात हैं, ये हालात को ख़ास सब लोग देखते हैं कि आज नफ़रत का जो जिस तरह से पौधे, नफ़रत के पौधे लगाए जाते हैं, उसके सामने मोहब्बत का पैगाम लेके हम आए कि काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। आज हम ऐसा जो देश देखना चाहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें आज़ादी दिलाई थी, वो आज़ादी को आज जो जिन लोग शहीद हुए थे आज वो शहीदों को याद करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं, हिंदुस्तान को जलाने का काम करते हैं। तो हमारा यही पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और गंगा ज़मनी तहज़ीब है हमारी कि तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग हम मजबूती से करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा गुजरात तरक्की करेगा और हम महासत्ता बनेंगे। ऐसी आज के दिन मैं तमाम लोगों को यही ऐलान करता हूँ। खास करके आप कच्छ में आए हो, कच्छ वासियों को क्या मैसेज दोगे? बस मैं कच्छ वासियों को ये मैसेज दूंगा कि बहुत मेहनतू लोग हैं, यहाँ के बहुत मेहनतू लोग हैं। जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ कि कच्छ के अंदर जहाँ कुछ भी होता है, यहाँ कच्छ ने तो जो भूकंप देखा है, भूकंप के अंदर जो देखा है, जो पूरा कच्छ ख़त्म हो गया था, ये कच्छवासियों ने पूरे अक्खे कच्छ को नया खड़ा कर दिया। आज वो ताकत है इन लोगों के अंदर। आज समझो आज बिज़नेस से लगाकर हर चीज़ के अंदर आज अच्छे बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, जिनके बड़े बिज़नेस है वो अल्लाह ने उनको दिल भी बहुत बड़े दिए हैं और खिदमत का काम भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से तमाम लोग इसको खिदमत करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम फिर एक मरतबा तो कच्छ के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज ख़ास आज जो प्रोग्राम के अंदर जो हमको जुम्मा भाई रायमा ने बुलाया था और उनके दावत को हम कबूल करके आए, उनकी पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। जश्न आज़ादी का मतलब है एक बनो नेक बनो। जश्न आज़ादी का मतलब है एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। जश्न आज़ादी तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होने और आपस में मोहब्बत करने का पैगाम देता है। आज़ादी का जश्न उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दिलों से कुदूरत और नफ़रतों का ख़ात्मा न हो जाए और दिलों में मोहब्बतों के चिराग न जल जाएं। इसलिए कि आज़ादी जो हासिल की गई थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं था। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उनकी पॉलिसी थी और इस पॉलिसी पे उन्होंने 100 साल तक हमारे मुल्क को ग़ुलाम बना के रखा। हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी मुसल्लत करदा ग़ुलामी को आज़ादी में तब्दील करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया। हिंदू का हा उधर से निकाला, मुस्लिम का माँ इधर से निकाला, दोनों को मिलाकर हम बनाया। हम लड़कर जुल्म के ख़िलाफ़ और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हम लड़े, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज हिंदुस्तान की आज़ादी पर फिर ग़ुलामी के बादल छाए हुए हैं। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए,
काली औलादें पैदा करके गए। ये काली औलादें भी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पे अमल कर रही हैं। तो जो काम अंग्रेज़ करके गए थे और उन्होंने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाया, वही काम आज अंग्रेज़ों की काली औलादें करके बहुत बड़े हिंदुस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाने की ज़ंजीरों में कसना चाहते हैं। इसलिए हमें जितनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी गई थी, उससे ज़्यादा हमें आज़ादी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देनी होगी। और उस दिन सही मानों में मुल्क आज़ाद कहलाने के काबिल होगा जिस दिन इस मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा हो जाएगा और मोहब्बत का दिया हर घर में जलेगा। ये है जश्न आज़ादी का मतलब। और अगर जश्न आज़ादी खून चुका माहौल में मनाई जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आज़ादी को मजरूह करके और आज़ादी को ज़ख्मी करके जश्न मना रहे हैं। जब हमारे आज़ाद मुल्क में बच्चे यतीम बना दिए जाएं, औरतों का रेप होने लगे, मर्दों को फुटबॉल की तरह उछाल दिया जाए, हकदारों का हक मारा जाए, रिश्वत और बदउनवानी अपने शबाब पे हो, तो आखिर हम जश्न आज़ादी को किस तरह मनाएं? जश्न आज़ादी उसी वक्त मुकम्मल तौर पे मनाई जा सकती है जब हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर आदमी अपने मज़हब के मामले में आज़ाद हो, अपने खान पीन के मामले में आज़ाद हो, अपने रहन सहन के मामले में आज़ाद हो। यह आज़ादी हमारे मुल्क में कुछ दिनों तक बरकरार रही, मगर इधर 10 साल से हमारी इस आज़ादी को ग़ुलामी में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हम ऐसी ग़ुलामी वाली आज़ादी को कबूल नहीं करते। हम उस आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं जो आज़ादी 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने 15 अगस्त को दी थी। आज वो आज़ादी ख़ुद ग़ुलामी के शिकंजे में कस दी गई है और अरबाबाने हुकूमत ने कस दिया है। अब मुल्क का संविधान हटाने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संविधान की बुनियाद पर हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, उसी संविधान को ग़ुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र में बंध कर इस मुल्क के हकीकी मानों में आज़ादी का जश्न मनाने की जद्दोजहद करें। थैंक यू।